even though we are scattered all across India, oh God, through the technology, we are able to come together. Lord, I pray that you will take this time under your control. And Lord, you minister to us, oh God. Your word will always edify us, oh God. Let today meditation also will be uh, a blessing for every one of us, oh God. Holy Spirit of God, I pray that you will take control of our mind, our vocal cord, everything into your hands, oh God. And even the technology that we are using, oh God, Lord, I pray that nothing will stop us for the next 1 hour, oh God. Thank you, Jesus. We commit this time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, it's joy to be together again. एक बहुत आनंदित समय है वापस आपके साथ जुड़ने में. The only thing is we are not in one place. सिर्फ एक ही चीज है कि हम एक जगह पे साथ में मौजूद नहीं हैं. But I believe we are one in spirit. लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि हम आत्मा में एक हैं. So the topic that I have selected for today's meditation, तो आज का विषय जो मैंने लिया है ताकि हम उसके ऊपर मनन करेंगे, integrity in pastoral ministry. इसका वो विषय है सत्यनिष्ठा पास्टरल सेवकाई में. So the key verse for that I have taken it from Paul's epistle to Titus. तो इस पूरे विषय में जो मुख्य वचन जो लिया है मैंने तीतुस के पत्र में से, पौलुस ने जो तीतुस का पत्र लिखा है, Chapter 2, अध्याय 2 verse 7 and 8. 7 और 8. So तीतुस चैप्टर 2 7वां और 8वां वचन. So that is the key verse. The whole sermon will be based on this scripture. और ये मुख्य वचन होगा, ये पूरा प्रचार इस वचन के ऊपर आधारित होगा. I'll read it in English and then Angelo will read it. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. यहाँ पे लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो. So in this scripture, Paul is writing to Titus. He's saying there are a lot of people are opposing the ministry that they've been doing. और ये जो वचन में है, पौलुस तीतुस को लिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई वो लोग कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हैं. So when they look at you, they should not have anything to accuse you. लेकिन पौलुस से कह रहा है कि जब वो लोग तुम्हें देखें तो उनके पास ऐसा कुछ भी ना हो जिससे वो आपका विरोध कर पाए. So even in today's situation, तो आज की भी सदी में there are a lot of people who are trying to find faults with the Christians. बहुत सारे लोग हैं जो मसीह या विश्वासियों के बीच में कुछ गलतियां या बुराई ढूंढ रहे हैं. And especially when we do ministry, they try to oppose that at any point. और जब हम सेवकाई करते हैं, हर समय वो विरोध करने की कोशिश करते रहते So हैं. when they try to find fault in us, और जब वो हमारे अंदर गलती ढूंढते हैं, we have to be perfect that nothing will be found wrong in us. तो हमें सही होना है, परिपूर्ण होना है, हमारे अंदर कुछ भी गलती नहीं उन्हें दिखाई देनी चाहिए. So that is what Paul is expecting. यही पौलुस कहता है कि वो चाहता है हर विश्वासी के बीच में. The pastoral ministry is a very important ministry in the church. एक पास्टरल सेवकाई कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है. It has to contribute to the morality of Christian community. और वो एक बहुत बड़ा योगदान बना है मसीह समुदाय के नैतिकता में. To an extent, we have to lead the world in morality. और हमें इस संसार का मार्गदर्शन करना है नैतिकता में. That is the reason that God has appointed fivefold ministry, so that the church will be conformed to the image of Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर ने 5 तरह के अगुवाओं को नियुक्त किया है ताकि कलीसिया है प्रभु यीशु के स्वरूप में ढाले जाए. So the pastoral epistles to Timothy and Titus, Paul is again and again emphasizing about his life, about his contact, about his preaching. So he is giving lot of emphasis to the pastor. और आप जानते हैं जो पास्टरल पत्र है,
पहला और दूसरा तिमोथी और तीतुस में पौलुस बार बार अपने जीवन के बारे में, अपने आचरण के बारे में, अपने उपदेश, अपने प्रचार के बारे में वो संबोधित करता है, बताता है। So in this scripture, there is a word called integrity. और इस वचन में जो शब्द है इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, In the Greek word is apthoria. और जो यूनानी भाषा में है उसका शब्द है अप्तोरिया। In English, there are various words have been translated. और अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद हुआ है तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Soundness, purity, honesty, or uncorruptness. There are a lot of words have been used. जो शब्दों का अनुवाद किया गया है सत्यनिष्ठा का, वो सुदृढ़ता, पवित्रता, ईमानदारी, भ्रष्ट न होना, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। So if we have to go back to the root word, अगर हम उस मूल शब्द को देखेंगे, the origin of this word is not from Greek, it was from Latin. और ये शब्द का जो मूल शब्द जिससे वो निकला है वो यूनानी भाषा से नहीं निकला है, लेकिन लैटिन भाषा से वो आया है। In fact, it is a martial word. और वो एक सैनिकों के बीच का शब्द है। In the ancient Roman army tradition, अगर हम देखेंगे जो रोमन सेना थी उनकी परंपरा एक हुआ करती थी, so they have to inspect their breastplate. और हर दिन उनको अपने जो छाती के ऊपर लोहे का कवच डाला जाता था उनका निरीक्षण करना पड़ता था, Because it covers your heart. क्योंकि वो छाती पे जो लोहे का कवच होता था वो अपने हृदय को सुरक्षित रखता था। The whole body is being protected by the breastplate. और पूरे शरीर को उस छाती के कवच से ढाला जाता था। So what they'll do, it seems, तो वो क्या करते हैं, उनकी परंपरा क्या थी हम जानेंगे। every day they will hit the breastplate. When somebody, the other soldier is wearing it, the opposite soldier will hit it with the iron fist. हर दिन क्या होगा, वो रोमी सैनिक उस कवच को डालेगा, उस पूरे अस्त्र को डालेगा और उसके सामने का जो सैनिक आएगा और उसके ऊपर अपने हाथों से मारेगा। Each one has to examine their own breastplate. हर व्यक्ति को अपने जो है कवच का निरीक्षण करना पड़ता था। When they hit it, जब वो उस कवच को मारते थे, when it is perfect जब वो सही डाला गया है and it survived that, और वो गिरता नहीं था, they believe that it can survive in the तो battle. वो विश्वास रखते थे कि जब वो युद्ध में जाते, अगर कोई उसके ऊपर मारता तो वो लोग वो हमेशा वो जीत जाते। So after the hit, they will say, if it is perfect, they will shout it integritas. और जब वो सामने वाला सैनिक या सेंचुरियन उसके ऊपर मारता और सब कुछ सही है, वो देखते कि वो छाती के ऊपर ही है, वो हिलता भी नहीं है, तो वो एक शब्द कहते हैं इंटेग्रिटास। So from there only this apthoria is being translated. तो उसी परंपरा से, उसी शब्द से इस अप्तोरिया शब्द का अनुवाद किया गया है। So what does integrity means? तो इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? It is examining our own self. यानी अपने आप का यानी खुद का निरीक्षण करना। It is for our own protection. वो अपनी सुरक्षा के लिए है। If we don't examine it in a proper way, अगर हम खुद की निरीक्षण सही रीति से नहीं करेंगे, in the battle we will be the loser. तो युद्ध में हम हार जाएंगे। So that is integrity. तो ये इसका मतलब सत्यनिष्ठा है। So now we will connect with the Paul's statement. तो पौल ने जो बताया उसके साथ हम उसे जुड़ाएंगे। There are enemies, there are people who are opposing you. पौलुस कह रहा है कि दुश्मन है और दुश्मन तुम्हारे विरोधी है, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। When they hit you, लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर मारे, your integrity is going to save you. तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुम्हें बचाएगी। That is when you will prove that you are a pastor without blameless, without any blemish. और तभी आप दर्शाओगे कि आप एक ऐसे पास्टर हो जिसके अंदर कोई दाग नहीं है, जिसके अंदर कोई धब्बा नहीं है। So in today's message, what we are going to deal with. तो आज के प्रचार में हम किसके ऊपर देखेंगे? So what is integrity in pastoral ministry? और सत्यनिष्ठा ये क्या है पास्टरल सेवकाई में? So I have taken a quote from one of the theologians, Swindle. तो एक स्विंडल जो एक थियोलॉजियन है उससे पास्टर ने एक कोट लिया है। So he says integrity includes financial accountability, personal reliability and private purity. और वो कहता है कि पास्टरल सेवकाई में सत्यनिष्ठा क्या है? इसमें वित्तीय यानी आर्थिक जवाबदेही,
व्यक्तिगत विश्वसनीयता और निजी शुद्धता शामिल है। So this three aspect, he says, a pastor has to hold more than anything. और वो कहता है इन तीन चीजों की जरूरत एक पास्टर को हर चीजों से बढ़कर जरूरी है और वो होना चाहिए एक पास्टर के अंदर। If you ask me, this three thing is enough? अगर आप मुझसे पूछे ये तीन चीजें काफी है? No, it is not enough. नहीं, ये काफी There are नहीं a है। lot of things that we have to add on. बहुत सारी और चीजों की जरूरत है। But these three things cover the whole aspect of Christian ministry. लेकिन ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और मसीह सेवकाई को वो कवर करती है। But I'm not going to go in the order that Swindle has written. I'm going to go do it in a reverse order. लेकिन जैसे स्विंडल ने जिस रीति में उसके अनुसार मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे अनुसार जाऊंगा। So the three aspects that we are going to deal with is integrity in private purity. और जो तीन चीजों के बारे में, तीन मुख्य चीजों के बारे में देखेंगे। पहली चीज निजी शुद्धता में सत्यनिष्ठा। निजी शुद्धता में सत्यनिष्ठा। We need to be pure when we are all alone. जब हम अकेले हैं, कहीं भी अकेले हैं, तो हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। So there is a verse again and again word comes in epistle. It says, set an example to the believers. तो हर बार उस पत्र में एक शब्द आता है कि तुम विश्वासियों के सामने एक उदाहरण या एक नमूना बनो। Even to Titus he says, set them an example. और तीतुस को भी जब पौलुस लिखता है वो कहता है तुम विश्वासियों के सामने, लोगों के सामने एक नमूना, एक उदाहरण बनो। So we need to set an example for the church. तो हमें कलीसिया के सामने एक उदाहरण बनना है। In our private holiness. हमारे पवित्रता में, in our righteousness. हमारी धार्मिकता में। It is the righteousness of God that we have to manifest in this life. वो परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमें लोगों के सामने प्रदर्शित करना है। Let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 1 verse 12. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 12 हम खोलेंगे। दूसरा कोरिन्थियों chapter 1 verse 12. So Paul is writing a letter to Corinthians. पौलुस कोरिन्थी की कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है। And in this statement, in this epistle, he is making a statement. और इस पत्र में वो कुछ कहता है उनसे। So I'll read that. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relationship with you, the church, with integrity and godly sincerity. We have done so, relying not on worldly wisdom, but on God's grace. यहाँ पे लिखा है दूसरा कोरिन्थियों 1:12, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। He is talking about his own conscience. वो अपने विवेक या अंतःकरण के बारे में कहता है। He is telling that I know that I am truly loved you. वो कहता है कि मैंने सच्चाई में तुमसे प्रेम किया है। So we served you sincerely. और हमने पूरी तरह से तुम्हारी सेवा की है। Our relationship is very true. और हमारा रिश्ता सच्चा है। It is it is integrity. और वो सत्य निष्ठा के साथ मैंने तुम्हारी सेवकाई की है। So the church in Corinthians were not accepting Paul as a leader. और कोरिन्थियों की कलीसिया पौलुस को एक अगुवाई नहीं मान रहे थे। So the second epistle is totally written to them to convince them that Paul is a servant of और God. दूसरा पत्र पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया को इसलिए लिखा ताकि वो उन्हें बता सके कि वो एक अगुवा है। So the first witness he is bringing in is his own conscience. तो पहला गवाह जो उनके सम्मुख वो ला रहा है उसका खुद का विवेक या उसका अंतःकरण, वो कैसे जिया वो उसको बता रहा है। What is integrity in our in an easy way where we can understand? और इस सत्यनिष्ठा को अगर आसान रीति से अगर समझना है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? It deals with your conscience. वो अपने अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ है। In that you are making yourself as a witness.
उसमें आप अपने आप को एक गवाह बनाते हो। So not the other guy has to come and vouch for us. तो किसी और को आके ये बताना नहीं है कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। So when we examine ourselves, जब हम अपने आप का निरीक्षण करें, our conscience has to say that it is genuine. तो हमारा अंतःकरण खुद हमें बताएगा कि हम सही है या गलत है। So no one will understand the conscience. तो किसी को भी अपने अंतःकरण या अपने विवेक वो लोग समझ नहीं पाते। No one can know what I am thinking right now. कोई भी ये नहीं बता सकता कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। But I know what is there in my mind. लेकिन मैं जानता हूँ मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, my conscience is very clear. मेरा जो विवेक है वो क्लियर है। So the question here is, तो यहाँ पे जो सवाल उठता है, it's more than the actions. Only people know our actions and they say that we are holy. लोग हमारे कार्यों को या कामों को देखने के बाद वो कहते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है। They will hear us speak. They will say, okay, he's speaking right. वो हमारे प्रचार को या बातों को सुन के ये कहते हैं, अरे ये तो सही बोल रहा है। When they look at their lives, they will say, okay, this guy is living right. लेकिन जब वो अपने हमारे जीवन को देखते हैं तो वो कहते हैं इनका जीवन बहुत सही है। But Paul, what he is saying here, लेकिन पौलुस क्या दर्शाना चाहता है? your conscience has to say, वो कहता है कि हम लोगों के बारे में बात नहीं करते, तुम्हारे खुद के अंतःकरण की आवाज में तुम्हें बताना चाहिए कि तुम सही हो या गलत हो, that you are pure, कि तुम शुद्ध हो, your thoughts are clear, तुम्हारे विचार सही है, you don't have any cunningness in your तुम्हारे heart, अंदर कोई छल या कपट नहीं है, you don't have any evil thoughts in your mind, तुम्हारे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है, you don't hate your brother. तुम अपने भाई से नफरत नहीं करते। That's what Bible says. If you think anything against your brother, it's like killing them. यही पवित्र शास्त्र कहता है, अगर तुम अपने भाई के बारे में बुरा भी सोचते हो तो तुमने उनके मन में सोच लिया कि तुम उसे मारना चाहते If हो। you look at a woman lustfully, अगर it तुम is there in your thought level. अगर तुम एक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, वो तो तुम्हारे विचार में ही है। You have already committed adultery. तुमने ऑलरेडी उसके साथ व्यभिचार तुम्हारे हृदय में कर लिया So है। what is integrity in private purity? तो सत्यनिष्ठा का मतलब निजी यानी स्वतः की शुद्धता में क्या मतलब है? That your conscience will testify that you are living a life worthy in the sight of कि God. आपका खुद का विवेक या आपका अंतःकरण एक गवाही देगा आपको कि आप परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं। We can live in God thinking that our conscience is right. हम परमेश्वर में जी सकते हैं ये सोचते हुए कि हमारा अंतःकरण सही है। But David lived for 2 years almost लेकिन without conscience. दावीद 2 साल पाप में जिया अपने अंतःकरण के He was साथ। still the king. वो राजा था, He was still did all those evil things. उसने वो बुराई करते रहा। Even when God wants to punish that child, he was fasting and praying. जब परमेश्वर उसके उस बेटे को दंड दे रहा था, वो उपवास प्रार्थना कर रहा So the था। first aspect is तो पहला मुख्य चीज जो है, your spirit, your conscience has to witness that you are living a worthy life in the sight of God. आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण एक गवाही देनी चाहिए आपको कि आप परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं। That is integrity. इसका मतलब है सत्यनिष्ठा। And then Paul goes on to say, इसके बाद पौलुस आगे जाके कहता है, you need to have honesty. तुम्हारे अंदर ईमानदारी होना जरूरी Why I है। say that word honesty? मैं क्यों कह रहा हूँ ये शब्द ईमानदारी? You have to set an example for others. तुम्हें दूसरों के सामने एक गवाह, एक उदाहरण बनना है। When they look at you, जब वो लोग आपको देखें, when they look at your actions, जब वो लोग आपके कार्यों को when देखें, they hear you, जब वो आपकी बातों को सुने, then they have to testify that you are honest. तो उन्हें गवाही देनी है कि ये व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति है। Honesty is witness from others on ourselves. ईमानदारी यानी हमारी खुद की गवाही नहीं, हमारी अंतःकरण की गवाही नहीं, लेकिन दूसरों की गवाही जो लोग हमें देख रहे हैं। So people have to say that we are living a honest life. तो लोगों ने आके कहना चाहिए कि बताना चाहिए कि ये व्यक्ति एक ईमानदार जीवन जी रहा है। We have to say for ourselves that I'm living an integrity life. हमें अपने आप को कहना है कि मैं एक सत्यनिष्ठा का जीवन जी रहा हूँ। So the first aspect is तो पहला चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, living a holy life. एक पवित्र जीवन जीना। When you are all alone, जब आप
अकेले हो, when no one is watching जब you, कोई आपको देख नहीं रहा है, and God is there. लेकिन परमेश्वर मौजूद है। Joseph was like that. यूसुफ वैसे था, No one was there, यूसुफ के सामने कोई नहीं था, but he told, "No, I can't sin against my God." लेकिन उसने ये बात कही, मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता At हूँ। every moment, we need to have that हर conscience. क्षण के में हमारा विवेक हमें गवाही देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। If we kill our conscience अगर हम अपने अंतःकरण के आवाज को मार दें in the battlefield, युद्ध में, our breastplate might be there, हमारा जो छाती का जो कवच है वो हो सकता है, but the enemy will kill and go. लेकिन दुश्मन हमें मार के चला जाएगा। So when we examine ourselves, लेकिन जब हम अपने आप की निरीक्षण करें, we need to be pure. हमें शुद्ध बनना है। So Daniel was a man of integrity. तो डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर सत्यनिष्ठा थी। The enemy is trying to find faults. दुश्मन उसके अंदर गलतियां ढूंढ रहे थे। In chapter 6 verse 4 and 5, they are unable to find it. और दानियल का 6 अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि दुश्मन उसके अंदर कोई बुराई ढूंढ नहीं पा रहे They थे। are unable to find a fault. वो उसके अंदर एक भी बुराई या गलती ढूंढ नहीं पा रहे हैं। Imagine somebody is looking out on a man to find a mistake. सोचिए वो व्यक्ति बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि इस व्यक्ति के अंदर से गलती मिले। But Daniel proved his integrity, that they are able to find no fault in him. लेकिन डैनियल ने सब लोगों के सामने वो खड़ा रहा और उसने अपने सत्यनिष्ठा को दर्शाया और उसके अंदर एक भी गलती उन्हें मिली नहीं। So I told you there are a lot of things Paul is writing to 1 Timothy, 2 Timothy and Titus. और पॉल बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, पहला तिमोथी में, दूसरा तिमोथी में और तीतुस में। There are a lot of qualifications for the pastor. बहुत सारी चीजें जो जरूरी है एक पास्टर के लिए, Do's and don'ts. जो चीजें एक पास्टर को करना है और जो चीजें नहीं करना So है। if you number it, it comes to 22. अगर उन चीजों को अगर लिखेंगे तो 22 चीजें हैं। So all those things we need to have it in our तो वो life. सारी चीजों की जरूरत है हमारे जीवन में। So if you are true to yourself, तो अगर आप अपने ही अंतःकरण में सच्चे हो you will be true in front of तो everyone. आप दूसरों के सामने भी सच्चे नजर आओगे। So that is what internal purity. तो ये है अपने खुद की शुद्धता, खुद की शुद्धता, निजी शुद्धता। So the second aspect is दूसरी चीज integrity in personal reliability. और व्यक्तिगत विश्वसनीयता में सत्यनिष्ठा। God has given us a responsibility. परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। People rely on us as leaders. लोग हमारे ऊपर निर्भर है, वो हमें एक अगुवा, एक लीडर करके न देखते हैं। So two aspect Paul is writing. तो दो चीजों के बारे में पौलुस लिखता है। So what he is writing here is, वो क्या लिखता है यहाँ पे? so watch your doctrine. तो अपने उपदेश पर ध्यान दो। In your teaching, show integrity. अपने उपदेश में, अपने सिखाने में सत्य निष्ठा दर्शाओ। With seriousness, soundness of speech. कहता है कि वो आप पूरे The same Titus 2 verse 7. तो यहाँ पे अपने उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई दिखाओ। So we need to watch our doctrine. तो हमें ध्यान देना है हमारे सिद्धांतों के ऊपर, हम जो उपदेश देते या प्रचार करते हैं उसके ऊपर। Similar kind of scripture he has written to Timothy in chapter 4 verse 16 of 1 Timothy. और पहला तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 15 में वही लिखा है, Watch your life and doctrine closely, persevere in them. यहाँ पे लिखा है इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नत 4 verse 16. 4 वर्स 16 सॉरी, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। So the first aspect is talking about watch your doctrine very carefully. वो कहता है कि अपने उपदेश या जो तू प्रचार करता है उसकी चौकसी रख। In your teaching, show integrity. और जो
तुम सिखाते हो, जो उपदेश देते हो, उसमें सत्य निष्ठा दिखाई देनी चाहिए। So to build up on this topic, I want to turn our Bibles to Acts chapter 20, where Paul is giving his last counsel to the Ephesian elders. और इस विषय के ऊपर आपको कुछ बताने से पहले हम प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें पौलुस एफिसियों के अगुवाओं के सामने कुछ उनको सिखा रहा है जाने से पहले। So here in verse 20, chapter 20, verse 20. प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय 20वां वचन। You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से मैं कभी न झिझका। So what Paul is saying here, यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? I never hesitated to preach anything which will be helpful for the listener. मेरे अंदर कभी भी झिझक नहीं हुई उन चीजों को तुम्हारे सामने लाने के लिए जिससे तुम्हें मदद मिले। So what we have to do as servants of God, सेवक होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमें क्या करना we are चाहिए? responsible to teach the word of God. हमारे अंदर एक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को सिखाएं। Whatever will be helpful for that believer, you have to teach them. जो भी उस विश्वासी के लिए मददगार साबित होगी वो चीजें हमें उसे सिखानी है। So Paul is saying your preaching has to be serious. तो पौलुस कहता है कि तुम्हारे उपदेश में गंभीरता हो। Your doctrine has to be clear. वो कहता है कि तुम्हारे उपदेश में सफाई हो। So what is important aspect what we need to think? जो बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? We need to keep a watch of our doctrines. तो हमारे उपदेश की चौकसी रखनी है हमें और हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। In this world there are a lot of false doctrines have been spreading across. इस संसार में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आज फैल रही है। The enemy is working 24/7. दुश्मन 24 घंटे सातों हफ्ते कार्य कर रहा And है। he is trying to destroy everyone. तो हर व्यक्ति को नाश वो करना चाहता है। So here Paul is writing to the Ephesian elders. यहाँ पे पौलुस एफिसियों के अगुवाओं को ये पत्र लिख रहा है। Savage wolves will come. वो कहता In है verse 29. और 29वें वचन में लिखा है, Savage wolves will come in among you. यहाँ पे लिखा है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे। So and then again he says, और उसके बाद वो वापस दोहराता है, within your team, तुम्हारे बीच में से भी people will be going from away from the truth. तुम्हारे बीच में से लोग सत्य से दूर चले जाएंगे। Verse 30 it says, your own number men will rise and distort the truth in order to drift away disciples after them. तीसरे वचन में लिखा है कि तुम्हारे बीच से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लें और टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। I think Ephesian church is the most blessed church in Christian ministry. और मैं मैं जानता हूं कि एफिसियों की कलीसिया एक बहुत एक आशीषित कलीसिया है। The greatest leaders who have lived there. और बहुत महान अगुवाए वहां पे रहे हैं। Paul did ministry there. पौलुस ने वहां सेवकाई की। Titus did ministry there. तीतुस ने वहां सेवकाई की। John and mother of Jesus were living in Ephesians. यूहन्ना और प्रभु यीशु की जो माँ थी मरियम वहां पे सेवकाई कर रही So थी। all the two epistles to Timothy was written Ephesians. और दोनों जो तिमोथियो के पत्र एफिसियस कलीसिया को लिखे गए The थे। Gospel of John was written from Ephesians. और यूहन्ना का सुसमाचार एफिसियों से लिखा गया The था। 3 epistles of John was written there. यूहन्ना के 3 पत्र एफिसियों के वहां से लिखा गया A था। special epistle for Ephesians were written और by Paul. एफिसियों के लिए स्पेशल पत्र भी लिखा गया था पौलुस ने। Even one letter from the Jesus Christ is written to Ephesians. और प्रभु यीशु से भी एक पत्र एफिसियों के कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा History गया है। says Luke lived there for 2 years to gather all the details of Paul and the early ministry of Jesus Christ. इतिहास कहता है कि लूक वहां पे 2 साल जिया ताकि वो पौलुस से और प्रभु यीशु के इतिहास को ले पाए। Imagine what knowledge of the word they would have experienced. सोचो
किस रीति की क्या परमेश्वर के वचन का ज्ञान उन लोगों को, एफिसियों के विश्वासियों को प्राप्त हुआ The रहेगा। greatest preachers are there. महान महान प्रचारक, महान महान उपदेशकार वहां पे जिए। To them, Paul is saying, तो उनको पौलुस कह रहा है, savage wolves will come. वो बोलते हैं कि फाड़ने वाले भेड़िया आएंगी। And I tell you, within your number, who is there with us right now, they are going to distort the truth and they wander away from the और truth. पौलुस के बाद ये भी कहता है, तुम्हारे बीच के लोगों में से वो भेड़िए खड़े होंगे। Leaders, be careful of what you learn. और अगुवाए, आपसे मैं एक चेतावनी देता हूँ कि आप ध्यान रखें कि आप क्या सीखते हो। Examine every scripture. हर वचन का निरीक्षण करो। Like the Bereans, examine everyone after hearing it. जैसे बेरिया के लोग थे, हर वचन को सुनने के बाद वो उनको जांचते थे। Spend your time in the word of God. अपने समय को परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और मनन करने में बिताओ। If you hear a different doctrine, अगर आप एक गलत सिद्धांत को सुने, get rid of that place. तो उस जगह से निकल जाइए। There are a lot of people will come. This is the new doctrine which no one have ever found. It is there with me. बहुत सारे नए नए शिक्षक, उपदेशकार आएंगे और कहेंगे, अरे ये तो एक नई शिक्षा है जो मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन वो सही नहीं होगी। With the very burden in my heart, I'll tell you, there is no new doctrine. The doctrine which is there for 2000 years, that is what is there. There is no new doctrine. और एक पूरे बोझ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई नई शिक्षा आज उपलब्ध नहीं है। जो 2000 साल से जो बाइबल में शिक्षा है वो ही मौजूद है। Be careful what you hear and what you preach. मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, आप ध्यान रखें, चौकसी रखें, आप क्या सुनते हो और क्या प्रचार It is करते हो। not only you will fall away, you will lead your congregation to fall away. लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ आप ही सत्य से दूर नहीं जाओगे, आप अपने विश्वासियों को भी सत्य से दूर लेके जाओगे। Paul did ministry there for 3 years. पौल ने वहां पे 3 सालों तक सेवकाई 3 की years he warned them day and night. और 3 सालों तक दिन और रात वो उनको चेतावनी देते थे। That is how he did ministry there. उस रीति में उन्होंने एफिसियों में सेवकाई So की। people of God, be warned with the word of God. तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन से आप चेतावनी लो। Check your doctrine. अपने उपदेश को Check- जांचो, Check your preaching. आपके प्रचार को जांचो। If you don't understand anything, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ you रहा, can always be open. आप पूछ सकते हो, Learn. आप सीख सकते हो। Cultivate a desire to learn every आपके time. अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हर बार आप सीखें। Don't think that you become a pastor that you know everything. आपको ये नहीं सोचना, अरे मैं तो एक पास्टर बन गया, अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। And I tell you, every day it's a new day and every day it's a day of learning. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन एक नया दिन है और हर दिन एक सीखने का दिन है। So hold on to the word of God. तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए। People come to you to hear the word of God. बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं वचनों को सुनने के लिए, Watch your doctrine. लेकिन आप अपने सिद्धांतों को, अपने उपदेशों को पर चौकसी रखें, ध्यान रखें। Show integrity in your preaching. आपके उपदेश में भी आप सत्यनिष्ठा दर्शाइए। What is integrity? सत्यनिष्ठा क्या है? Whatever is beneficial for your hearer, you have to speak. that. जो भी आपके सुनने वालों को फायदेमंद होगा वो ही आपको उनको बताना है। Sometimes it has to be a tough message. बहुत बार उनको वो प्रचार करने से उनको दुख महसूस होगा। Sometimes you have to talk about their life. बहुत बार उनके जीवन के बारे में आपको बताना होगा, You have to do it लेकिन आपको करना होगा, because that is the work God has called us. क्योंकि वो उस काम के लिए, उस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें But बुलाया how है। to do it? लेकिन हमें कैसे You करना have है? to do it with love, हमें प्रेम के साथ करना है, with maturity. हमें मैच्योरिटी के साथ So करना है। ask God to guide you how to do it. तो परमेश्वर से आपको मांगना है कि परमेश्वर मेरी मार्गदर्शन करो, मैं कैसे इन उपदेशों को, सही उपदेशों को इन लोगों के सामने ला सकता The second thing, what you have to watch. हूं। दूसरी चीज आपको किस पर ध्यान रखनी है? Watch verse 28 of Acts chapter 20. Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय 28वें वचन में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है
कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे अपने लहू से मोल लिया है। Watch over the flock, which is the members of your church. अभी वो कह रहा है कि तुम्हारी जो कलीसिया के जो विश्वासी है, जो झुंड है, उसकी चौकसी रखो, उन पर ध्यान दो। How they have been saved? वो उन्हें कैसे बचाया गया, उनका उद्धार कैसे हुआ है? Jesus Christ has purchased with his own blood. प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर उन्हें मोल लिया है। Your money, your wealth is not going to bring a soul to the church. आपका पैसा, आपका धन, आपकी दौलत वैसे विश्वासियों को आपके कलीसिया में नहीं The लाएगी। blood of Jesus Christ has brought the people to the church. लेकिन प्रभु यीशु के लहू ने उन्हें मोल लिया है और कलीसिया The में blood लाया of है। Jesus Christ is more precious than gold, all the gold of this world. प्रभु यीशु का लहू इस संसार के हर सोने और चीजों से बहुमूल्य है। Value that. उसका मूल्य समझे। Value your members. आपके विश्वासियों का मूल समझे। Don't give up on them. तो उनके ऊपर गिव अप मत करना। Bible clearly says, persevere with them. बाइबल ये कहती है उनके पीछे रहना। To Timothy, it says, persevere with them. और तिमोथी को वो कहता है उनके पीछे पड़े रहना। So they will be susceptible. They will be weak. वो कमजोर होंगे, वो गलतियां करेंगे। At times they will fail again and again. कभी बहुत बार वो हारते रहेंगे। They will fall. वो गिरेंगे। They won't be perfect. वो परिपूर्ण नहीं At होंगे। times they will turn against you. बहुत बार आपके विरोध खड़े In रहेंगे। all those उन situations, सारे स्थितियों के बीच में remember your duty is to watch over them. याद रखना आपका कार्य उनके ऊपर चौकसी Do रखना। not desert them उनको आपसे दूर मत फेंकना unless they are rebellion of some serious sin in their life. जब तक वो कोई ऐसा बड़ा पाप न करे और आप किसी के सामने विरोधी ठहरे। So how you have to watch over तो them? आपको उनके ऊपर ध्यान देना या उनकी चौकसी कैसे रखनी है? You have to pray for them. आपको उनके लिए प्रार्थना You करनी have है। to preach for them. आपको उनके सामने प्रचार करना And है you have to carry it in your own burden. और आपके अंदर उनके लिए एक बोझ होना जरूरी है। Look at the church of Corinthians. कोरिन्थियों की कलीसिया को देखिए। It is not a perfect church, so imperfect church in the whole epistles of Paul, it is Corinthians. वो एक परिपूर्ण कलीसिया नहीं थी, लेकिन कोरिन्थियों में एक सही कलीसिया नहीं थी। And he's saying, I'm again conceived with them, I'm having birth pains. और वो कह रहा है जैसे एक स्त्री जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके अंदर दर्द होता है, उसी रीति में वो होता है इस कलीसिया के लिए मेरे अंदर वो दर्द I want to है। ask you, do you have pain for your people? मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपके विश्वासियों के लिए आपके अंदर वैसा दर्द है, वैसा बोझ है? Or do you have burden for the souls? आपके अंदर वो बोझ है उन लोगों के लिए? Jesus paid everything. प्रभु यीशु ने सब कुछ दे His दिया। very life is being given to that one precious soul of your church. उस एक व्यक्ति को, आपके कलीसिया के एकमात्र व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन It न्यौछावर is कर not दिया। our counsel, it is not our preaching, it is not our salvation. Our message saved them. हमारी सलाह, हमारा प्रचार, हमारा उद्धार का मैसेज ने उसे नहीं Bible बचाया। clearly says the Father is the one who draws his people to Jesus Christ. बाइबल ध्यान से ये कहता है और बताता है कि पिता हमें उन लोगों को प्रभु यीशु के पास ले He has आता है। given you responsibility. उसने आपको एक जिम्मेदारी दी है Take that responsibility in a very serious way. और उस जिम्मेदारी को ध्यान से करिए। Don't take it as a job that you do for the work. तो ये मत लीजिए कि जैसे लोग काम करते हैं It is वैसे a आप भी serious करें। message. I'm speaking very वो seriously. बहुत एक सीरियस मैसेज आपको ध्यान से करना है। Watch over the soul which is given to you. और जो लोग आपको दिए गए उसके ऊपर चौकसी रखें। They will be weak. वो लोग कमजोर रहेंगे, They will fail. वो लोग हारेंगे, They will go through difficulties. वो कष्ट से गुजरेंगे। Understand them. उनको समझिए, Be with them. उनके साथ रहिए, Pray with them. उनके साथ प्रार्थना Somehow कीजिए। get them out of the trouble. किसी रीति में उस गलती से, उस If- कष्ट से उन्हें If निकालें। you are not able to do it, लेकिन अगर आप न कर पाओ then who will do it? तो कौन कर पाएगा? No one will be able तो to do it. कोई on this भी one. उनको निकाल नहीं पाएगा। God has entrusted in you. परमेश्वर क्यों आपके हाथों में उनको सौंपा That है? is the very calling of your life. ये आपके जीवन की बुलावट है। That is the very calling of your ये life. आपके जीवन की बुलावट है।
Watch over the soul that is being entrusted in you. जो विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपा गया उसके ऊपर चौकसी रखे। If you don't put the breastplate of righteousness, अगर आप if you don't have integrity in your ministry, I tell you, it is not only you the sufferer, your church is going to be the suffering. अगर आप धार्मिकता का कवच अपने आप को डालोगे नहीं, अगर आपके सेवकाई में सत्यनिष्ठा नहीं होगी, तो सिर्फ आप ही सफर नहीं करोगे, दूसरे लोग भी गिर जाएंगे। I've been like that one point of time. एक समय में ऐसे रहा था। I never had burden for people. दूसरे लोगों के लिए मेरे अंदर बोझ नहीं था। Paul, they are speaking evil about Paul. पॉल के बारे में वो लोग बुरा कह रहे हैं। And this guy is saying again, I'm having a birth pain for them. और पौलुस कह रहा है इन लोगों के लिए मेरे अंदर दुख है, बोझ है। Are you feeling that pain, people are? क्या आप उस दर्द को महसूस कर रहे जो पौलुस महसूस कर रहा था अपने विश्वासियों के लिए? Do you really burden for when you see your church is suffering, when they are struggling? क्या जब अपने कलीसिया के लोग कष्ट में है, दर्द में है, तो क्या आपके अंदर वो बोझ और जो दर्द आपको महसूस होता है? Many times we don't feel the pain. Why we don't put ourselves in that position? बहुत बार हम उनके दर्द को महसूस नहीं करते क्योंकि हम उस अपने आप को उनकी स्थिति में नहीं रख पाते। So people of God, परमेश्वर के लोग हो, what is personal reliability? तो खुद की विश्वसनीयता। The church is reliable on you. और they are relating to you, they are trusting you. चर्च आपके ऊपर निर्भर है, वो आपके ऊपर विश्वास रखती है। My pastor will lead me in a truth. मेरा पासवान मुझे सत्य में, सच्चाई में आगे बढ़ाएगा। He will teach me the truth. वो मुझे सत्य सिखाएगा। He will understand me. वो मुझे समझेगा। In my struggles, मेरी कठिन समय में, in my weaknesses, मेरे कमजोरियों में, they will carry my burden and we will all go together. वो मेरे बोझ को उठाएंगे और हम सब साथ में चलेंगे। So people of God, परमेश्वर के लोग, that is the integrity in personal reliability. ये है जो है या व्यक्तिगत पर्सनल रिलायबिलिटी, ये जो है सत्यनिष्ठा है, व्यक्तिगत विश्वसनीयता। The third aspect of integrity, तीसरी चीज हम देखेंगे, it is about financial accountability. और ये वित्तीय या आर्थिक जवाबदेही के बारे में है। I'm not talking about your financial management of your personal life. मैं आपके पारिवारिक आर्थिक स्थितियों को कैसे संभालना उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। Yeah, that is very important. You have to manage your family in a way that you will not get into debts. बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को सही रीति से संभालें, उनकी आर्थिक स्थिति को संभालें ताकि आप कर्जों में ना पड़े। That is important. ये बहुत जरूरी है। So what I'm going to talk about is about the financial management of your church. So मैं आज जो बात करूंगा वो वित्तीय जवाबदारी में ईमानदारी आपके कलीसिया की जो पैसों के मामले में या आर्थिक स्थिति को कैसे संभालना। So there is a theologian who writes it, Samuel, his name. He is writing financial misappropriation is affecting the church and is rampant in the church more than sexual misconduct. यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। This part alone. Financial misappropriation is affecting the church more than the sexual misconduct or sexual immorality is affecting the church. और एक बाइबल के शिक्षक जो सैमुअल है वो ये लिखते हैं, वो कहते हैं वित्तीय यानी पैसों की हेराफेरी चर्च को प्रभावित कर रही है और कलीसिया में यौन दुराचार या बहुत से अधिक प्राचीर है। So here, यहाँ पे what we need to understand, हमें क्या समझना है, we need to be very careful with the financial things. जो कलीसिया के जो पैसे है या वित्तीय चीजें है उनको हमें ध्यान रखना है। So if you read first epistle to Timothy chapter 6 from 9 onwards, you can say many wants to get rich and fall into temptation. और पहला तिमुथियों का 6वां अध्याय 9वें वचन से हम पढ़ेंगे तो पौलुस लिखता है बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं और वो लालसा में पड़ जाते हैं and they've ended in destruction. और उनका नाश हो चुका है। So he says the love of money is the root of all evil. वो कहता है कि पैसों का प्रेम हर
बुरी चीज का जड़ है। They were eager for money. They wandered away from faith. वो बहुत आशा करते थे ताकि उनको पैसा प्राप्त हो, वो अमीर हो जाए और वो विश्वास से दूर हट गए। So people of God, परमेश्वर के लोगों, there are many ways to get into the trap of becoming rich. बहुत सारी चीजों से आप अमीर बन सकते हो। If you have a mobile, you will know. अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप जानते हो Different apps message comes. अलग अलग ऐप से आपको मैसेज आती है। Rummy.com. एक rummy.com करके आता है। So even for cricket, there is a where you can bet. और क्रिकेट के ऊपर आप बेटिंग लगा सकते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं। Gambling comes in different forms. और जो जुए के अलग अलग रूप नजर आते हैं। So what is it? तो क्या है वो? A click of a button, immediately you can earn. एक बटन को क्लिक कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। Many people have been deceived in that area. बहुत सारे लोग इन चीजों के पीछे होकर गुमराह हो चुके हैं। Paul says, पौलुस कहता है, godliness with contentment is of much gain. और वो कहता है परमेश्वर में बने रहना और अपने जो चीजें उनके साथ खुश रहना, उसमें बहुत ज्यादा फायदा So है। this is I'm talking about for your life. ये आपके जीवन के लिए मैं कहना चाहता हूँ। So be content. तो आपको जो आपके पास पर प्रभु ने दिया है उसके साथ खुश If रहो। God has given you much, अगर प्रभु ने आपको बहुत कुछ चीजें दी you है need to live with that. तो उन चीजों के साथ आपको जीना And है। if you don't have anything, लेकिन अगर आज के दिन में आपके पास कुछ भी नहीं है and you have to live with तो that. आपको उसके साथ That's जीना है। what Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. यही पौलुस कहता है, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ के जरिए जो मुझे ताकत देता है। I know how to live when I have plenty. मैं जानता हूँ जीने के लिए जब मेरे पास बहुत आयत है। If I don't have anything, I know how अगर to मेरे live. पास कुछ भी नहीं है तो मैं जी सकता हूँ। People of God learn to live that way. परमेश्वर के लोगों, आपको भी सीखना है इस रीति में जीने के। Don't worry about what is going to happen tomorrow. ये मत चिंता रखिए कि कल क्या होगा। The one who called you will be faithful and he will be faithful to you. जिसने तो आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य होगा और वो आपके साथ विश्वासी ही रहेगा। A greatest servant of God who has written this statement, I have been young and I have grown up, but I have never seen a righteous person who are hungry for food. एक महान परमेश्वर का दास जिसने इस शब्दों को लिखा है, मैं एक युवक था और अभी मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैंने कभी भी एक धार्मिक व्यक्ति को खाने के लिए या रोटी के लिए भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा। So don't worry about your life. तो कभी चिंता मत करिए अपने Have जीवन faith के in बारे में। God. Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें And he will see you through. और वो आपको इस जीवन के रास्ते के ऊपर आगे ले जाएगा। Now we'll come to the ministry aspect of financial और accountability. अभी हम सेवकाई के बारे में, आर्थिक जो वित्तीय चीजें उसके बारे में देखेंगे। Gospel of Luke, chapter 16. लूका का 16वां अध्याय, लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय Verse 9 onwards, I want to read you. 9वें वचन से, लूका का 16वां अध्याय 9वें वचन से हम पढ़ेंगे। I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, that is, the wealth is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property on your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. यहाँ पे लिखा है लूका 16 अध्याय 9वें वचन से हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाते रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। What Jesus is saying in this parable, यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बताना चाहता है? the worldly people have understood people are more important than money. संसारिक लोग समझे हैं कि लोगों का ज्यादा मोल है पैसों से भी। They are evil, वो लोग बुरे हैं, but they come to understand that money is not going to last long लेकिन forever. वो समझते हैं कि सदा के लिए पैसा नहीं ठहरेगा। So they were investing in people. तो लोगों के जीवन में वो इन्वेस्ट कर रहे So थे। what you and I have to do? तो आपको और मुझे क्या करना The है? money that God has given, जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, we need to gain friends, हमें मित्रों को पाना है, which means we need to save souls. जिसका मतलब है, We need to spend in the lives of people. इसका मतलब है हमें लोगों को बचाना है, लोगों के जीवन में उस पैसों का डालना है। 4 years back, we would have all gone in different directions. 4 साल पहले हम लोग अलग अलग रास्तों पे जा सकते We थे। never had money. हमारे पास पैसे नहीं थे, We never had to pay anyone. हम किसी को कुछ भी दे नहीं पाते थे, But we all came up together. लेकिन हम एक साथ We आए, never looked on money. हमने पैसों को नहीं देखा And we believed God will see us through. और हमने विश्वास रखा कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। 4 years later, 4 साल के बाद, and I tell you, the way God has blessed us, He has not blessed us in the past, from 2002, I've been there. और किस रीति से परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, उसके पहले 2002 से पास्टर दीपक कह रहे हैं वो इस सेवकाई में, वो अभी जो आशीष हमने अभी देखा है वो पहले नहीं देखा। In these 4 years, God has blessed this ministry more than what we can imagine. इन 4 सालों में परमेश्वर ने इस सेवकाई को इतना आशीष किया है, हमारे सोच के परे है। Right now, your church might be very little. आज आपकी कलीसिया छोटी हो सकती You है, might not have much. आपके पास ज्यादा कुछ नहीं हो You will सकता, have only little. आपके पास थोड़ा कुछ होता है, But all that God is expecting, लेकिन यही परमेश्वर चाहता है how you are investing it. आप उस पैसों को कहाँ लगाते हो? Are you faithful in that little that God has क्या given you? उस थोड़े चीजों में जो परमेश्वर ने दिया है आप विश्वास योग्य हो? If you don't do it faithfully, and then you're expecting more, how come God can do it? अगर आप विश्वासी रहकर उन पैसों के साथ जो को दिया है उसको सही रीति से नहीं चलाओगे, तो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा कैसे दे पाएगा? So when there is little money, जब थोड़ा पैसा है have accountability. तो उसका लेखा जोखा रखिए, Write down how much you receive on a Sunday offering. लिखिए कि संडे को आपने क्या पाया। If somebody gives you a tithe, record it. अगर कोई दशवांश देता है तो लिखिए, So what you are spending, write it जो down. आप खर्चा करते हो वो लिखिए। You are not doing it for ourselves. वो आप हमारे लिए नहीं कर You रहे are हो, doing it to show God. वो आप परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हो और परमेश्वर को दर्शा रहे You हो। are showing your integrity to God. वो आप अपनी सत्य निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हो परमेश्वर के सामने। If you are having integrity in money matters, अगर पैसों के मामले में आपके अंदर सत्य निष्ठा है, I tell you, no one will blame you. तो कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा In the सकता। Christian level, no one will blame you. मसीह लोगों में कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। But if you do mischief in this part, लेकिन अगर आप पैसों के मामलों में, आर्थिक मामलों में गलती कर लो, it can not only lead you to blame, but it can even lead you to a criminal state. तो कोई ऐसा ही नहीं कि कोई आपके ऊपर एक दोष लगाए, लेकिन आपको वो लोग दोष लगा के आपको एक क्रिमिनल भी बना The सकते हैं। government is watching the ministries that is happening. सरकार हर सेवकाई के ऊपर नजर रखी हुई है। The ministry that the government is running is to find faults with the minorities. सरकार खाली ढूंढ रही है कभी वो गलती ढूंढ ले। And I tell you, if our accounts are not perfect, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे अकाउंट सही नहीं होते, one person's mistake will lead a problem to the whole एक organization. व्यक्ति की गलती पूरी संस्था का नाम नीचे गिरा सकती है। I want you all to take very serious measures to do this. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सीरियसली लेना है और इन चीजों को करना है। Whether you do it on your own or whether you appoint an accountant, we don't have any problem. But the thing is, be faithful in that matter. आप वो खुद अपने खुद करे या किसी और को नियुक्त करे इन अकाउंट्स को करने के लिए, लेकिन आप विश्वास योग्य बनकर इन चीजों को जरूर Jesus करें। is asking, if you are not faithful in worldly riches, this money that is going to perish, if you are not faithful, how can I give you true riches?
प्रभु यीशु कह रहा है, अगर संसारिक धन में तुम सच्चे न ठहरे तो सच्चे धन को मैं तुम्हें कैसे सौंपूंगा? If you are not faithful in the little money that God is giving you, and how much more I can give? प्रभु यीशु ये कहता है, अगर थोड़े धन में अगर तुम सच्चे नहीं ठहरोगे तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें कैसे दे पाऊंगा? This theologian is writing it. Managers of financiers of the church, if it is not right, it will lead to a position where there won't be any support for the church. यहाँ पे वो लिख रहा है, जो थियोलॉजन है, यदि कोई चर्च के वित्त का प्रबंधन करने में असमर्थ है, इसका मतलब है कि इस तरह वो पास्टर भी चर्च का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होगा. I'll read a statement. If one is unable to manage finances of the church, it means that such a pastor will not be able to manage the church as well. And there is a probability that people will not also support his ministry in giving because financial integrity is lost. यहाँ पे एक बाइबल का शिक्षक ये कहता है, यदि कोई चर्च के वित्त का प्रबंधन करने में असमर्थ हो, इसका मतलब यह है कि वह पास्टर भी चर्च का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होगा और वह एक है संभावना कि लोग उसे कोई भी आर्थिक मदद दे नहीं पाए क्योंकि वो उनके अंदर वो सत्य निष्ठा को नहीं देखेंगे. That is why if you see all the mainline churches, इसलिए सारे मेनलाइन चर्चेस को जब हम देखते one हैं, person will not operate the accounts. एक व्यक्ति पूरे अकाउंट्स को संभालता The नहीं है. local members will be involved in handling. A team will be taking decisions and spending the money. उस कलीसिया को जो एक टीम होता है, वो पैसों को संभालती है और क्या खर्चा करना है, क्या करना है उसके साथ वो निर्धारित करती है. People of God, if it is required, form a team in your church, make them accountable so that you all will discuss and take a decision in a collective manner. परमेश्वर के लोगों, अगर ये जरूरी है तो आपके कलीसिया में भी एक टीम को तैयार करें ताकि वो निर्णय ले पाए और आपके आर्थिक चर्च के वित्तीय चीजों को वो संभाल पाए. So I want to give you some practical suggestions. तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कैसे व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूँ जिससे आप ये कर पाओ. Maintain a proper accounts of your church. अपने चर्च का उचित लेखा जोखा रखें. Whatever you receive, write it down. जो भी आप पाते उसे लिखिए. Have one account. एक अकाउंट्स हो. Maintain a team, a leadership team to handle the एक accounts. लीडरशिप टीम तैयार करें ताकि इस अकाउंट को आप संभाल पाओ. The second thing is, दूसरी चीज, pay all your rents, bills, telephone bills, anything that have to be electricity bills, pay it on time. Don't set a bad example to anyone. आपके किराए को, आपके बिल्स को, आपके टैक्सेस को सही समय पर दीजिए. आप एक बुरा नमूना न बने. So if you have only, if you have 5,000 rupees that you have to pay for the church rent, अगर आपके if you have a rent amount is 5,000 rupees, अगर आपका किराया, आपके चर्च के रेंट का जो किराया है 5,000 रुपए, once you receive the money, जब उस पैसे को प्राप्त करते हो set apart that first aspect तो उस 5,000 को अलग से रखिए so that you will pay the owner. ताकि उसके मालिक को आप सही समय पे वो पैसे दे पाओ. And next thing, whatever you have to pay, और उसके बाद जो आपको देना है work out that. और वो सही उसका लेखा जोखा Pay कीजिए that on time. और वो भी सही समय के ऊपर When दीजिए. you pay that, जब आप वो करोगे I tell you, you'll be doing right in every aspect. तो हर व्यक्ति के सामने आप सही करते हुए या सच्चाई में और खराई में नजर आओगे. Ask your church members to be faithful in giving. और तीसरी चीज, अपने विश्वासियों को सिखाइए कि वो कैसे दान और दशवांश दे सकते You are हैं. not asking for yourself. आप पैसे अपने खुद के लिए नहीं मांग रहे हो. 1/10 belongs to God. दशवांश परमेश्वर का है. Whether they put it in the offering box or whether they give it to you, the tithe belongs to God. वो दान पेटी में डाले वो या आपके हाथ में है,
वो दशवांश परमेश्वर का है। If a person says it's a tithe, it belongs to the church. अगर कोई कहता है कि वो दशवांश है तो वो कलीसिया का है। If somebody gives you offering for yourself, you don't need to bring it into our अगर accounts. कोई कहे पास्टर ये ऑफरिंग आपके लिए है तो आपको चर्च के अकाउंट्स में नहीं लाना है, वो आप अपने लिए रख सकते हो। If people give genuinely in a right manner to God, अगर सही रीति से लोग परमेश्वर को दे you will be blessed. तो आप आशीषित रहोगे। From Harvesters Outreach India, we are not asking your money to give it to harvesters. हार्वेस्टर्स आउटरीच इंडिया की संस्था आपसे ये नहीं मांग रही कि वो पैसे आप हमें दो, But what we expect is लेकिन हम क्या चाहते हैं, somewhere down the line, that is in another 3 years or in 5 years, somehow you have to grow up to a level where you will sustain your own life and your own ministry. हम क्या चाहते हैं कि अभी आगे के 3 सालों में या 5 सालों में कि आपकी इतनी बढ़ोतरी हो कि आपकी कलीसिया आपको संभाल पाए। If you do so, अगर आप ऐसे कर पाते हो it will be a huge blessing तो एक बहुत बड़ा आशीष होगा, where you can receive your salary there. जहाँ पे आपका जो सैलरी आपको प्राप्त होगा। I tell you, Paul said you can take double portion of the salary पौलुस कहता है आप दुगना सैलरी ले सकते हो, because you are being faithful to that one church. क्योंकि आप उस एक कलीसिया के साथ बने हुए हो। So pastors and teachers can take double portion. तो पास्टर्स और शिक्षक, बाइबल के शिक्षक दुगना पगार ले सकते So हैं। if you have money in your church, अगर आपके कलीसिया में पैसा I tell you, we don't want to know anything. हम नहीं चाहते जानने के लिए आपके पास कितना And पैसा है। even if we come to know that you are taking so much of money, I tell you, we will be very happy. अगर हम जाने कि आप ज्यादा पैसा भी पगार में ले रहे हो तो हम बहुत खुश होंगे कि आपको वो प्राप्त हो रहा We है। will be happy, I tell हम you. बहुत खुश होंगे। I'm not telling just to please you all. From my heart, I tell you, we will be very मैं happy. इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रसन्न करूं, And लेकिन मैं सच्चाई में कह रहा हूँ, हम खराई में मैं हृदय से हम लोग खुश होंगे। I want to see everyone be blessed. और मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि हर व्यक्ति आशीषित हो। So these are the 3 aspects where we need to have integrity in our और life. ये 3 चीजें हमारे जीवन में सत्यनिष्ठा होना जरूरी है। So I want to conclude it. और इस मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Have a clear conscience. एक सही या सच्चा विवेक हो, Live in purity, शुद्धता में जिए, that no one will accuse you. ताकि कोई भी आपके ऊपर दोष न लगाए। Even if they try to accuse you, और oppose you, अगर वो आपके विरोधी भी ठहरे they have to be ashamed that none has been found in तो your life. वो शर्मिंदा होना चाहिए आकर कि आपके अंदर उनको एक भी गलती न मिली। Watch your doctrine. और अपने सिद्धांतों को, अपने उपदेशों के ऊपर चौकसी रखें Keep on learning. और सीखते रहिए। And if you find anything wrong, run away from that और place. अगर आपको उस जगह में कुछ गलत शिक्षा मिले तो उस जगह से भाग जाओ। Watch over the soul which has been entrusted in you. अपने विश्वासियों के ऊपर चौकसी रखें, उनके ऊपर ध्यान रखें। The small amount that you are receiving right now, जो थोड़ा सा पैसा आपको अभी प्राप्त हो रहा है, be faithful in that. उसमें विश्वास योग्य बनिए। Invest in the lives of people. लोगों के जीवन में उसे इन्वेस्ट कीजिए। When God sees you faithful, जब परमेश्वर देखेगा कि आप विश्वास योग्य हो, He will give you true riches. वो आपको सच्चे धन से लैस करेगा। More than what you imagine, He can bless you. जो आपके सोच के परे भी वो आशीषित कर सकता And है। we have experienced it in this 4 years. और इन 4 सालों में इस संस्था ने और हमने इसे अनुभव किया है। So it is not just a doctrine, it is a reality that I तो speak. ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है या जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है जो हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है। Maintain your accounts properly because we are not only accountable to God, we are accountable to the government, and this government is scrutinizing all the Christian workers. Be careful in dealing with the और accounts. ये अपने लेके जोके को, अपने अकाउंट्स को, चर्च के अकाउंट को सही रीति से रखिए, करिए, क्योंकि सिर्फ हम परमेश्वर के सामने अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन इस सरकार के सामने भी अकाउंटेबल है। ये सरकार हमारे ऊपर नजर रख रही है, हर मसीह संस्था के ऊपर वो नजर रख रही है। In this present dispensation, in today's world, इस अभी की पीढ़ी में pastoral ministry is facing lot of challenges of integrity. पास्टरल सेवकाई में हम देखते हैं कि सत्यनिष्ठा बहुत लोगों के अंदर नहीं नजर आती। Job is making a statement in chapter 27 verse 5. अय्यूब का चैप्टर 27 वर्स 5 में अय्यूब कुछ कहता And I है, want to conclude with that. और इसके साथ मैं आप समाप्त करना चाहता Till हूं। I die, I will not deny my integrity.
चैप्टर 27 वर्स Verse 5 5. नो अय्यूब का 27वां अध्याय 5वां वचन में अय्यूब ये कहता है, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा। Will it be your statement? क्या ये आप कह सकते हो जैसे अय्यूब ने कहा? Will it be your statement? क्या ये शब्द आपके मुंह से भी निकल सकते हैं? When I talk about the financial integrity, Samuel, at the end of his ministry, he called the whole congregation and he asked, "Am I be faithful?" और जब मैं पैसों के मामले में बताता हूँ, फाइनेंशियल मामले में बताता हूँ, तो सामुएल के जीवन को जब हम देखते हैं, तो भविष्यद्वक्ता सामुएल ने पूरे अपने जीवन, जब वो बुजुर्ग हुआ तो लोगों के सामने आया, तो उसने लोगों से पूछा, क्या मैं तुम्हारे सामने खराई में टिका हूँ? क्या मैंने जीवन में आपने खराई देखी है, सत्यनिष्ठा देखी है? ऐसे उसने पूछा। So likewise, at the end of our life, तो हमारे जीवन के अंत में we have to say, not others. We have to लोगों say, ने नहीं, हमें खुद ने एक गवाही देनी चाहिए, I have fought a real good fight. मैंने एक सही युद्ध को लड़ा है, I've been faithful. मैं विश्वास योग्य रहा, I lived in integrity. मैं सत्यनिष्ठा में जिया हूँ, And I completed the task which was given by और Jesus मैंने Christ. उस काम को पूरा किया है जो मुझे प्रभु यीशु ने सौंपा था। God bless you all. प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we want to thank you and praise you for this time. परमेश्वर पिता, इस समय के लिए आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। Lord, we may fail in many times. हम बहुत बार गलतियां करते थे और हार जाते हैं, But Lord, we want to be faithful. लेकिन हम विश्वास योग्य रहना चाहते हैं। Lord, I pray that you will enable each one of us to show integrity in our life, oh God. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर व्यक्ति को आप ताकत दोगे ताकि हम सत्यनिष्ठा में चलें। It is very hard, oh God. बहुत कठिन है इस रीति से चलना, But we know that we can live it with your purity. लेकिन हम जानते हैं कि आपकी शुद्धता से हम इस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं, Clear conscience. और अत्तकरण, सही अत्तकरण के Help साथ, us to watch our doctrine, oh God. और हमारे उपदेश के ऊपर चौकसी रखने के लिए हमारी मदद करिए। Help us to watch the soul which was entrusted to हमारी us. मदद करे कि हम उन विश्वासियों के ऊपर चौकसी रखें, Help us to be content with what we have. और हमारी मदद करे कि जो आपने हमें दिया है, जो पैसे हैं, उसके साथ हम खुश हो। So whatever you give to the church, oh तो God, जो आप इस कलीसिया को देते हो, help us to be faithful in the हमारी मदद करिए ताकि उन थोड़ी चीजों में हम सच्चे ठहरे, so that we will receive more and be faithful more. ताकि हम और ज्यादा आपसे प्राप्त करें और ज्यादा विश्वास योग्य ठहरे। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you all. Thank you for joining. परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े।